الرحيم قل لا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। और किसी सच्ची जो कलाम पाक पढ़िए सुभान अल्लाह के हाथ में इशारा सवाब आप भी मिलकर
محمد وعلى آل محمد واجب الاحترام حضرات سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ذات سیدنا المشتاق متشبه إلى الله وإلى الرسول ومن سيدنا الشاه غلام معين الدين المعروف بڑے لالا جی صاحب قدس سرہ العزیز کے وصال پاک کی ان اس گھڑی کی یاد میں منعقد ہے۔ اور یہ بڑی بابرکت تجلیات و انوار سے معمول یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی خاص بندہ اپنے معبود حقیقی سے وصال کی دولت پاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ پوری زندگی جس سے ملنے کی امید اور آرزو وہ زندگی گزارتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے ہجر و فراق میں زندگی بھر مشتاق اور منتظر رہتا ہے، تو بے انتہا اس کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ حافظ نے کہا تھا خرما وقت زبینا سوء مندر بیرغم، وہ بڑا بابرکت وقت ہوگا، بڑا خوشگوار وقت ہوگا جب ہم اس ویرانے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت اعلیٰ حضور قبلہ عالم قدس سرہ العزیز کے وصال کی گھڑیوں میں دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک انبساط اور خوشی کی لہر آپ کے چہرے سے نمودار تھی، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ مجھے بزرگوں نے بتایا، اپنے اساتذہ نے، کہ پتہ نہیں پوری زندگی اتنے آپ مسکرائے نہیں ہوں گے جتنے بوقت وصال مسکرائے۔ زندگی میں یہ کہتے رہے کہ ساوی پیلی ہو رہیاں یہ سفیاں تے لالیاں،
इब्न फारिद मक्की बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कसीदा फारदिया उनका मशहूर है। इब्न फारिद मक्की ऐसा शख्स है कि आपने एक तवील अरसा हरम मक्का के जंगलात में गुजारा है। 10 दिन की मुसाफत पर आप वहाँ क्या पजीर थे, मक्के के सहरा में, लेकिन हर नमाज आप हरम मक्का में आकर अदा करते थे। और जब नमाज के लिए आप रवाना होते तो जंगल का एक शेर, बब्बर शेर जिसका काम चीरना फाड़ना है, वो आपके सामने सवारी के तौर पर अपने आप को पेश करता। लेकिन आपने कभी उस शेर की सवारी नहीं फरमाई। एहतराम और अदब हरम मक्का की वजह से और आपके साथ साथ वो शेर चलता और आप नमाज अदा करने के लिए मुसाफतें कम कर दी जाती और आप हरम मक्का में आकर नमाज अदा करते। आपके विशाल का वक्त आया तो कभी आप मुंह इस तरफ कर लेते हैं चारपाई पर, कभी इस तरफ कर लेते हैं। निहायत इस तरह की कैफियत थी। तो इस दर्द भरी अंदाज में उस मौके पर आपने फरमाया, इनका मंजिलती फिल हुब्बे इंदकुम मा कद राअयत। आप क्या देख रहे थे कि जन्नत साज धज कर आपकी आंखों के सामने थी और जन्नत से आप अपना मुंह फेर कर कभी मुंह इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं। कभी जन्नत इधर आती है तो मुंह इधर कर लेते हैं, जन्नत इस तरफ तो मुंह इधर कर लिया। और फिर ये कह रहे हैं कि इनकानत मंदिरती फिल हुब्बे इंदकुम मा कद राअयत फक़द दज्जातु अय्यामी, कि अगर मेरी कीमत, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा, मेरा लेवल अगर यही है जो कुछ मैं देख रहा हूं, तो फिर मैंने अपनी जिंदगी ज़ाय कर दी है। मैं तो जन्नत के मालिक के, जन्नत के खालिक के दीदार के लिए मेरा सब कुछ था, तो मैं तो उसी में तरसता रहा। तो ये जन्नत सच धज कर मेरे आ रही है, तो अगर जन्नत मेरी कीमत लगाई गई है तो फिर मैंने अपनी जिंदगी फकत दज्जातु अय्यामी, मैंने अपनी जिंदगी के अय्याम ज़ाय कर दिए। ये है अहले कमाल, वो अपने मालिकुल मुल्क, अपने माबूद हकीकी से इश्तियाक और शौक और मोहब्बत, जिनके बारे कुरान कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों को अपने अल्लाह से, अपने रब से अशद्दतरीन मोहब्बत होती है। और वो हस्ती जिनके विशाल की इन घड़ियों में अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम यहाँ जमा हैं, इसको इन घड़ियों को कम न समझे। उन्हें तो अपने मालिकुल मुल्क से विशाल की दौलत हासिल हुई और विशाल दैनी और तजल्लियात इलाहिया का दीदार नसीब हुआ। उनके लिए तो ये मुबारक घड़ियां हैं, हमारे लिए क्या है? तो ये औकात ऐसे होते हैं, ये वक्त ऐसा होता है कि इनमें अगर कोई उनकी याद में उन घड़ियों को याद कर लेता है तो उसका भी काम हो जाता है, उसकी भी बख्शिश का सामान हो जाता है। इसको मामूली मत समझे। अल्लाह अकबर। और फिर वो हस्ती जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जात की नफी की, अपने वजूद की नफी की,
मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तकरार से कहते रहे, और इसको और मैं हूं इसको नासमझी और बेवकूफी और लाइलमी करार देते रहे। न समझो कुछ तो सब कुछ मैं ही मैं, न समझो कुछ, अगर मैं किसी का कभी पता ना हो तो मैंने बेवकूफ बन जाऊं तो फिर सब कुछ मैं न समझो कुछ तो सब कुछ मैं ही मैं हूं, अगर समझो खुदा है मैं नहीं। अपने मालिकुल मुल्क के वजूद के सामने अपने आप को अदम सिर्फ कहा नहीं है, अपने फेर से अपने एक्ट से साबित किया है। राणा जी साहब का वजूद अपनी नफी वजूद के अंदर इतनी हद तक आगे चले गए थे कि अपनी तारीफ या अपनी मैं, अपनी अनानियत को फना कर चुके थे, जो फना के दरिया से गुजर कर बका बिल्लाह के मकाम पर फायज हो चुके थे। ये तो मालिकुल मुल्क की जात के आगे, और फिर अपने शेख, अपने वालिदे मुशफिक जिन्होंने उनकी तरबियत की और बड़ी खूबसूरत तरबियत की, ऐसी तरबियत ना ऐसा बाबूजी जैसा, ना ऐसा कोई बाप मिलेगा, ना लाला जी जैसा कोई बेटा मिलेगा। ऐसा मुशफिक बाप जिसने अपने बाप की खत्तो किताबत के जरिए से जुबान, कलामी, तहरीरन, अमलन तरबियत फरमाई, अमल के साथ तरबियत की। अल्लाह अकबर। तो अपने शेख से मोहब्बत का ये आलम है। कई लोग बैठे हैं यहाँ जिन्होंने हज़रत लाला जी साहब की सोहबत में बैठने को उन्हें शर्फ हासिल, इस फकीर को भी हासिल। अपना नाम कभी नहीं लिया। बाबू ये कहता था, बाबू ये करता था, जो बात होती बाबू के रेफरेंस से, बाबू की, बाबू ये करता, बाबू ये कहता था। अल्लाह अकबर। कभी अपना नाम नहीं लिया, अपनी नफी में लोग आगे चले गए थे, अपने शेख में फना, और फिर आगे चले जाए आप हज़रत बाबू जी से, उनकी उनसे बैठ उनकी ज़ियारत करने वाले भी लोग मौजूद हैं। हकीकत में तो याद रखें, यहां इस खानकाह का बानी वो हस्ती है जिन्हें दुनिया किबला आलम कहती है, सैयदना पीर मेहरे अली साहब। मैंने लाला जी साहबान के ज़बान ही सुना है, आप फरमाते थे कि मेहरे अली शाह हमारी पहचान है, हम इनके बगैर जीरो, हमारी पहचान हुजूर किबला आलम। हमें कौन जानता है? हमें अगर कोई जानता है, हम कुछ हैं, पहले तो हम कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है तो हजरत किबला आलम पीर मेहरे अली शाह के वजह से हमारा तारुफ पीर मेहरे अली शाह है। और आपके लिए भी यही होगा, तमाम यहाँ मुतालिकीन के लिए यही आपके सामने होना चाहिए। हमारा शेख मेहरे अली शाह है, हमारा मुर्शिद, हमारा हादी, हमारा रहनुमा, हमारा सब कुछ किबला आलम सैयदना पीर मेहरे अली शाह। हम खाते भी इन्हीं का है, पीते भी इन्हीं का है, हम जो कुछ हैं, हम जो कुछ, मैं ये फकीर बोल रहा हूँ, मैं तो अन्य तलबा को कहता रहता हूँ, और हर क्लास में, हर सबक में बुखारी हो, नसाई हो जी, शरह कायद हो, मंतिक की कोई किताब हो, हजरत का हवाला जरूर होता है। ये हजरत की बातें होंगी, यहाँ बातें होंगी तो पीर मेहरे अली शाह की होंगी। हम क्या, हम तो मोहरे उनकी जगह पर बैठे। ये बात सबको ज़हन नशीब करनी चाहिए।
और हमें जो हम जैसे लोग हैं जो इस मनसब पर फायद हैं, इनकी तरफ से उनको भी यही, लोगों को यही बताना चाहिए, यही बात कराना चाहिए कि जहां इधर हमें तो नजर आता है, हमें तो नजर आता है, वैसे तो मार्फत वगैरह वो कुछ भी अबजद का भी पता नहीं है, लेकिन हमें यही नजर आता है कि इधर भी मेहरे अली शाह है, इधर भी मेहरे अली शाह है, इधर भी मेहरे अली शाह है, इधर भी मेहरे अली शाह है। और मैं कसम उठा के कहता हूं, खुदा की कसम, अगर आप अपने वजूद की नफी करके यही कहें कि जो कुछ है मेरे अली है, अल्लाह आपको रंग लगा देगा, हर तरफ रंग होगा, मेरे अली का रंग होगा। तो मैं कह रहा था कि हजरत बाबूजी साहब कहते, हजरत मेरे हजरत ने ये कहा, मेरे हजरत ने ये कहा, मेरे हजरत ने ये कहा, अपनी तो बात ही नहीं की, अपने हजरत का हवाला था। और जब हजरत से पूछा कि आप क्या हैं, तो आपने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे है सारी अली, मेरा है, अपनी तो कोई बात ही नहीं है, मेरा है, ये अदब सीखो, मेरा है सारी अली की कर्म कीता गौसे आजम, अपने सिर दी आवाज, कभी गौस की बात की, कभी अली की बात की। और अगर ऊपर चले जाएं, अली से पूछा गया कि हजरत अजहीन दुनिया आपको कहती है, मज़ारुल अजायब वल गराइब दुनिया आपको कहती है, जी असदुल्लाह गालिब दुनिया आपको कहती है, आप बिरादर मुस्तफा हैं, आपका मर्तबा नबी के साथ कैसा है? हुजूर ने फरमाया कि अली तू मेरे साथ को ही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से निस्बत थी। हारून को रब मूसा ने मांगा था, वजअलहु वज़ीरम मिन अहली, वजअल वज़ीरम मिन अहली, एक वजीर हो जो मेरा मुईन और मददगार हो मेरे घर वालों में से। उन्होंने मांग कर लिया, वजीर मुईन मांग कर लिया, अल्लाह ने बिन मांगे अपने नबी को अली अता फरमाया, अली जैसा वजीर अता फरमाया। चलो यार, हम इस मसले में नहीं पढ़ते कि कौन क्या, हमें कोई ये हक नहीं है कि हम यहाँ तराजू लेकर बैठ जाए, फला अफसर है, फला अफसर है, फला अफसर, हमें क्या पता? ये खुदाई बातें हैं, अल्लाह जानता है कि कौन उसके नजदीक ज्यादा अफजल है। लेकिन इस हदीस को देखकर हुजूर ने फरमाया कि जैसे मूसा के बाद हारून के लेवल का कोई आदमी नहीं था, इसी तरह नबी के बाद अली जैसे लेवल का कोई आदमी। यही है तस्बीह का मतलब क्या है? अंता मिन्नी बमंज़िलते, अंता बमंज़िलते, अंता मिन्नी बमंज़िलते हारून बे मूसा, तेरा मेरे साथ वही ताल्लुक है जो हारून का मूसा, हारून के लेवल का आदमी मूसा के बाद पूरे बनी इसराइल में नहीं था, पूरी उम्मत में नहीं था। तो फिर आप तस्बीह का मतलब आप खुद कर दिया, खाली जगहों को आप खुद फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर, खुद अंदाजा लगा। अल्लाह तो ऐसी हस्ती जिनको ये मकाम हासिल है कि ये जो उम्मत मोहम्मदिया के औलियाए किराम हैं, उनका भी मुरब्बी कासिम विलायत अली है, और मुजद्दिद के बताओ मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फरहादी। क्या बात है, अल्लाह अकबर। हमें तो इस दरबार शरीफ के अंदर अदब सिखाया गया, और हमने अदब हर बुजुर्ग का हम
अदब करते हैं, हर सिलसिले का अदब करते हैं, हर बुजुर्ग का नाम अपने अदब से लेते हैं। और हम अपने तलबा को यही सिखाते हैं कि जहाँ अदब का ये बारगाह ऐसी है, यहाँ अदब का दर्स लिया, और जिनको समझ थी, बूझ थी, वो भी यही करते थे। अल्लाह अकबर। एक दफा मेरे पास मदरसे में कमरे के अंदर शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब, बड़े बुजुर्ग मौलाना शफी उकाड़वी साहब के भी उस्ताद है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके साथ मेरे कमरे में आए, मुलाकात करने बैठे रहे। शायद मैंने चाय भी पेश की और फिर मैं उन्हें रुखसत करके बाहर निकला। ये एक नंबर सराह से बाहर निकला, चूही बाहर निकला, लाला जी से बांध मजलिस के लिए तशरीफ है। शेखुल कुरान आपसे आपकी दोस्ती की लाला जी से, तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में ये कहा, ये तासुब की हवा अब चली है, आज से कुछ अर्सा पहले इस तरह की हवा नहीं थी। और जानने वाले इस मुकद्दस सरजमीन का कितना अदब करते थे और यहाँ की हजरत की औलाद का कितना अदब करते थे। हजरत लाला जी साहब से अर्ज किया, कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब ने, कि जी हुजूर हम बगदाद गए और वहाँ में कमरा नहीं मिलता था, तो आपका हमने नाम लिया और आपकी वजह से हमें वहाँ कमरा मिल गया और हमें रिहाइश का बंदोबस्त हो गया। जो ही ये लफजरा ऊंचा लफज था, ये लफज बोला मैंने देखा अपनी आंखों से, हज़रत क़िबला लाला जी साहब का वजूद जैसे फिक्र नहीं किया, ऐसे ऐसे सुकड़ के बिल्कुल आजमी के साथ सारा आपने झुका दिया, बारगाह है कुफियत का जिक्र आया, अपना सर झुका दिया। अल्लाह अकबर कि मैं और मेरा नाम है फस्त जिक्र मनन चाहते हो। अल्लाह अकबर, वहां मेरा नाम, हमारा आपका नाम लिया तो आप हमारा काम बन गया। हज़रत की आजिज़ी और इनके सारी बारगाह गौसियत। इसी तरह दूसरा वाक़या सुनो कि इस सरज़मीन का अदब करने वाले वो कैसे लोग थे। बड़ों बड़ों ने जहां सर झुकाया है, फाजिल बरेली मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अलैहि रहमा, अल्लाह ताला उन पर रहमत करे। उनके पड़पोते अख्तर रज़ा खान कादरी, ये मुझे उस्ताद मोहतरम मौलाना फैज़ अहमद साहब ने, और मैं उस टाइम पढ़ाता था, तो मेरी अदब मौजूदगी में पिछले टाइम को कहीं दो नशीफ आए और जो ही गाड़ी से उतरे ना, दूर गाड़ी कहीं खड़ी पैर अड्डे पर गए, तो उन्होंने जूते उतार दिए। खुदाम ने कहा कि हजरत यहाँ आप, ये तो आम जगह है, जूते क्यों नहीं पहन रहे? और मैं आपको नहीं पता जहाँ गौस पाक की औलाद रहती है, गौस पाक की औलाद रहती है। अल्लाह अकबर, जिनको समझ थी, अकल थी, फहम था और जो कुछ समझते थे, तो उनका ये आलम है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत अली से पूछा गया कि हजरत आपका अपना तारुफ भी बताए ना, दुनिया तो आपको कई नाम से जानती है, अपना क्या तारुफ है आपका? आपने क्या जवाब दिया? और आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। वाखिर दावा।
मदरसाई के लिए जाना है मदीने में गदाई के लिए। या रब हो अता मुझको गुलामी की सनद। या रब हो अता, या रब हो अता मुझको गुलामी की सनद। दरबार रिसालत में रसाई के लिए ऐ खुदावंद करीम 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 कोई सजदे के लिए दर पे झुका जाता है। कोई सर फोड़ के चौखट पे मरा जाता है। शोर दीवानों में बढ़ता ही चला जाता है। कोई बेसाख्ता हर वक्त यही कहता है दुनिया
पता नहीं बगदाद निवासियां तेरी गा सुनेरा दुखा भरिया इन अखियां दर्श पियासियां आई सूला भरिया सीने सड़े विचों निकलन हाल सदा उदासियां दा तेरे मुझे कदी मिले भरदियां नूं तेरे मुझे कदी मिले भरदियां नूं लोकी दसदे उदासियां दा दस्ती तीरा दर्द में मेरे अली ने तेरे बाज है तो उदासियां
सारे संगी अपनी आजाद अपने दिल च रखो। आप सब से दुआ फरमा रहे। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।